Good morning, everyone, and warm welcome to today's webinar. It's a pleasure to have you all with us. Over the past few months, equity markets have experienced renewed volatility, largely driven by escalating geopolitical tensions in the Middle East. These developments have added fresh layers of uncertainty to an already complex global investment landscape. In such an environment, understanding how experienced fund managers are navigating risk assets become even more crucial. Our objective today is to bring you timely, data-driven insights that help cut the noise so you can make informed, confident investment decisions in the months ahead. We are delighted to have Mr. Sandeep Agarwal, co-founder and fund manager at Sovilo Investment Managers. He will be sharing his insights, in-depth analysis and strategic perspective on navigating today's dynamic market under the theme Chaos to Clarity, Stock, Strategy and Outlook. Joining him is Ms. Padmavati Udecha, who heads research at Sovilo and brings valuable insights to the discussion. Today's topic broadly include geopolitical risk monitor, impact of Middle East tensions, RBI watch, inflation trajectory and evolving rate outlook, current trends in FPI dynamics. If any participants has any questions during the session, please feel to drop them in the chat box. We'll take them in the Q&A segment. With that, I now hand over the floor to Mr. Sandeep Agarwal to take us through his views. Hi, good morning, and thanks for having on a Saturday morning on a holiday on the call to listen to us. Thank all of you for the opportunity. I will hand over the call to Padmavati, who will take you through some of the key. Niteshji will take you through the beginning 3-4 slides, which are related to how we have moved ahead in last few months, and then Padma will take over. She will brief you more on our philosophy, and then I will take you through what is happening in the global side and how do we see the opportunity for India. I think that is the right order to go ahead. Perfect, Padma. Padma, you can start with this investment philosophy side, and then I'll take it from financial outlook and PMSAI world perspective. Yeah, sure. So thanks, Niteshji, and thank you everyone for joining. So just a brief about the investment philosophy that we follow here at Sovilo. For us, 5 things matter the most. Number one, we look at the scale of businesses. Sometimes there will be profitable businesses, but if it is not scalable, like they're not able to capture a larger pie of the overall market, then investing in these kind of businesses will not really help us generate outsized returns. So the first pillar that we have in our investment philosophy is that we want business models that are able to scale up in a profitable manner. The second and the most important pillar for us is that these industries or these companies, they have to be able to generate superior returns versus other peers in that industry. So, returns, it can be like ROCs, ROE, or, even the return on time investment. And it has to be on a sustainable basis. So until and unless, companies really meet this criteria for us, even if there are short-term periods of, very strong earnings growth or, strong bounce in earnings, we try to take it with a pinch of salt. So for us, any stock, if it has to be a structured story, then we definitely want it to be able to generate superior returns on a sustainable basis. The third important pillar for us is technology. We live in a world where AI is taking over almost every industry, every sector, and we have seen like there's a lot of data driven backing that for companies which are able to leverage technology, they're able to grow faster and grow in a sustainable manner. So हमारे लिए ये technology, this is also ये भी एक बहुत ही important pillar है. The fourth important pillar for us is leadership. Ultimately, the captain of the ship has to be knowledgeable. He has to have insights. He has to be well capable to navigate through uncertain times. Because जैसे अगर आजकल हम देखते हैं
वर्ल्ड में इतनी सारी अनसर्टनटी है, इतनी सारा मतलब बहुत सारा डायनामिकली सब कुछ चल रहा है, वर्सटैलिटी होनी चाहिए लीडर में। एंड सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लास्ट पिलर विच इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आप सब कुछ अच्छा कर सकते हो, लेकिन अगर आप इंटीग्रिटी और एथिक्स फॉलो नहीं करोगे तो आपका जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल नहीं रह पाएगा। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज वन थिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो दीज आर द 5 key pillars which is the core investment philosophy for us at Sowilo. With that, over to Nitesh for taking through these things. I'm very happy to share with all the participants in the forum. Okay, consistently for the last 2 years, Finance Outlook magazine has identified Sovilo investment managers as top 10 upcoming and promising portfolio management houses in India. So I'm very happy to share this with all the participants. Padma, the next slide. Again, one of our very, very good achievement or key achievement is we have been ranking among top 10 in PMS AIF world, not for 1 month, not for 2 months, not for 3 months, but we have been ranked in top 10 across for consistently in the last 14 months, from April 2024 to April 2025. This actually talks about our processes and our thought process that has gone behind in generating superior returns in these volatile markets. Yes. So with that, I will, again take over, and I would like to just quickly run everyone through what's really happening in the markets. So since we last spoke, we have seen that, Indian markets, they bottomed out somewhere in April, in the early weeks of April, where, Mr. Trump, he actually announced a pause on reciprocal tariffs. So as we all know, these were weighing on market sentiments, and there was a fear of earnings growth also slowing down. But post that pause, we saw that markets saw a sharp bounce. Now, I'll come in a bit to what is driving it specifically for India, but globally, this was one of the key driving factors. And also, just on this slide, if you see, almost all markets have, they've been giving sharp returns or sharp bounce in CY25. India what all factors are at play? One, obviously, the relief that we have got on tariffs, and also the chances that India will be one of the countries the initial lot of countries who will have a trade deal with the US, and therefore we will be in a position to basically get more trade deals, or basically an advantage versus China and other emerging markets. So that is something which is very positive for us. And also we will be discussing some of the other macro factors in greater detail during the PPT, like for example, benign inflation outcome, a very accommodative RBI. आप सभी ने देखा ही होगा कि last week RBI ने, it has delivered a jumbo rate cut, something that we hadn't seen for last like almost 3-4 years. मतलब 50 बिप्स रेपो रेट कट कर दिया, CRR के लिए 100 बिप्स कट का ट्रेजेक्टरी दे दी है पूरी सितंबर तक. So RBI has been very, very proactive in ensuring adequate liquidity in the system in order to support the industry. So all these factors are leading to sharp returns for Indian equity markets. Now ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अभी ये जो रिकवरी का जो बाउंस आया है मार्केट में, इसके वजह से वैल्यूएशंस एक बार फिर से एक्सपेंसिव हो गए हैं. आप जैसे ये टेबल पे देख सकते हो कि एक्सेप्ट इंडिया एंड यूएस, almost all countries their PE has dipped below the 10-year averages, क्योंकि these countries, they are facing their own internal challenges, like either they have been imposed with very sharp reciprocal tariffs by the US, or they have their own macro economic factors which like high inflation, low earnings growth, etc., जिसके वजह से कि they are not able to command or sustain the valuations. But if you see India is poised, or by IMF also, we are going to be the fastest growing major economy in CY25 and CY26. And ये तो मतलब एक macro perspective हो गया. Going forward in the presentation, we'll be discussing how, if we look at the bottom up ideas, there are so many stocks, there are so many sectors which are poised to be, give us phenomenal earnings growth over the next 3 to 4 years, because there are structural dynamics in place. So when you have such kind of
structural roadmap for, economic growth, for earnings growth, then looking at valuations, or, saying that it's expensive, that is something which is not really warranted. Because हमारा last 10 years average, 10 years में जो हमने growth दिखाया है, जिस पे हम, like for example, 20 times was like the average P ratio that we traded at. Now in the next 5 years, we are poised to deliver much higher or much better growth rates. So as a result, we are bound to get a higher valuation multiple versus other emerging markets which are kind of struggling. So that's on the valuations. Just talking a bit about the recent, earnings, like earnings season just got ended. So Q4 earnings, we did see that, like broadly in Q4, PAT growth had kind of slowed down. It was around 10% year-on-year growth, because we are seeing cost rationalization, and there was also like a low base. Revenue growth also has remained soft, but within the segments, we are seeing that, SMIDs or the small and mid-cap stocks, they are able to deliver, or they are able to maintain decent earnings growth. And in FY 26 and 27, the expectation is that they will significantly outperform the large caps when it comes to earnings growth. Now, why this will happen? We will discuss that later, during the course of our presentation, that what all sector specific or bottom up factors are at play, which is going to lead to this outperformance. So this is on, like, the overall trend. Just specifically on Q4 numbers, small and mid caps earnings were much better than large caps. This was aided by cost cuts and also low base effect. Sandeep ji, you want to like take it forward from here? Yeah. So hi, good afternoon again. And there are a few things, बहुत सारी चीजें हैं. So I will use both English and Hindi, and if someone wants me to change the language, I will try to do that also. But broadly, I'm assuming that सबको हिंदी और इंग्लिश दोनों समझता है. तो सबसे important जो है कि our cost of funds have started going down substantially. If you see the bond yield gap which was there between India and US, वो बहुत जोर से नीचे गिरा है last 10 साल में, and it is the lowest gap today, and the reason is that RBI has upfronted the rate cut also. Additionally, अपने यहाँ पे जो growth की visibility है far better than other countries. As Padma said कि we are fastest growing economy in the world in that size, and inflation भी अपना control में है. तो उसके कारण ये जो अपन कंटिन्यूसली अपनी रेट कम होते जा रही है, और यूएस में इसलिए कम नहीं हो रही, एक तो फेड रेट नहीं कट कर रहा है, दूसरा उनको दिख रहा है कि इकोनॉमी में जोर से झटका आ सकता है, तो दे आर वरीड अबाउट दैट ऑल्सो. तो इसीलिए बॉन्ड यील्ड्स इतनी जल्दी गिर नहीं रहे हैं. एंड अपने यहाँ पे जो ये गैप कम हुआ है, इसके कारण बहुत सारी इंडस्ट्रीज को फायदा होगा. अगर आप इंडिया में करीब 3,300 मिड एंड स्मॉल कैप कंपनियों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे, तो एबिटा तक ब्रॉडली सब 11 से 15%, 16% मार्जिन बनाते हैं, और पैट पे आते आते वो 2-3% हो जाता है. और अगर उसके बीच का आप गैप देखेंगे तो कुछ पैसा डिप्रिसिएशन में चला जाता है, और एक बहुत बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट में जाता है, और उसके बाद जो बचा होता है उसमें टैक्स चला जाता है. तो अपने कंट्री के लिए इंटरेस्ट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि सब लिवरेज कंपनीज है, सबने पैसा लिया हुआ है काम करने के लिए, धंधा करने के लिए. वर्किंग कैपिटल लोन है, टर्म लोन है, सब कुछ है. हालांकि टर्म लोन बहुत कम है, लेकिन वर्किंग कैपिटल लोन बहुत है. उसके कारण जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो दो फायदे होते हैं. एक तो इंटरेस्ट बर्डन कम हो जाता है, तो प्रॉफिट का नंबर बहुत जोर से जंप होता है. दूसरा ये होता है कि आपकी एबिलिटी पैसा बोरो करने की ज्यादा हो जाती है, बिकॉज बैंक्स जो रेशियोज देखते हैं उसमें आपका रेशियो फेवरेबल होता जाता है. और तीसरा, जब रेट कट होती है तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बेटर हो जाता है, बिकॉज आप एक मिक्स ऑफ इक्विटी और डेट डालते हैं धंधा करने के लिए. तो अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपका डेट का कॉस्ट कम होता है, तो आप उसमें जो प्रोपोर्शन डेट का मिक्स ज्यादा करते हैं, तो उससे आपके रिटर्न्स इंक्रीज होते हैं. पद्मा, कैन यू मूव टू सेकंड स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है जो आप देख रहे हैं. इसमें पहला है जो आपको दिखा रहा है कि जो फ्लोज हुए, हमने देखा है पिछले वर्ष से एफआई माल बेचना चालू किया था, और बहुत जोर से अपना कंटिन्यूसली दे वर सेलिंग शेयर्स फॉर डिफरेंट रीजन. पहले टैरिफ के चक्कर में बहुत सारा माल बिका कि ट्रम्प क्या करेगा, और ट्रम्प बार बार ये बोल रहा था कि वो यूएस का कॉर्पोरेट टैक्स रेट जोर से काटेगा.
और तो इन्वेस्ट जो FIs थे उनको लग रहा था कि अगर वहां पे जोर से इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है तो अपन एक बड़ा पैसा वहां पे बना सकते हैं, क्योंकि अगर टैक्स कटेगा तो ऑब्वियसली EPS जोर से बढ़ेगा US की कंपनियों का, तो हम लोगों को उसका फायदा मिल जाएगा। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट उसके लिए निकल रहा था। पर धीरे धीरे आते आते अप्रैल में आते आते लोगों को रियलाइज होने लगा कि ट्रम्प का बातों को लेके हम अपना बिजनेस नहीं डिसाइड कर सकते, फ्लोज नहीं डिसाइड कर सकते। सो वो लोग वापस आना चालू हुए हैं। एटलीस्ट उनका पेस जो बेचने का था वो बहुत कम हो गया है, और अभी तो पूरा मार्केट डोमेस्टिक इन्वेस्टर डोमिनेट कर रहा है, हेल्प बाय रिटेल इन्वेस्टर्स। जो राइट हैंड साइड पे चार्ट है, बिगेस्ट जो जो सबसे इंपॉर्टेंट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा रहा है, जो अपना US डॉलर इंडेक्स है। तो अगर आप देखेंगे US डॉलर इंडेक्स अप्रिशिएट होना हमेशा रिस्की होता है, बिकॉज जब वो अप्रिशिएट होता है तो लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा वहां मूव करते हैं, बिकॉज उनको ये लगता है अगर हमने दूसरी कंट्री में पैसा रख के कुछ पैसा रिटर्न बना भी लिया इक्विटी से या डेट से, तो जब हम वापस रिपेट्रिएट करेंगे तो करेंसी लॉस में उतना पैसा चला जाएगा। तो जब भी US करेंसी अप्रिशिएट होता है तो सारा पैसा इमर्जिंग मार्केट से फ्लो आउट होता है, और उसका रिवर्स होता है जब डिप्रिशिएट होता है। तो अभी अगर आप देखेंगे US डॉलर इंडेक्स कंसिस्टेंटली वो डिप्रिशिएशन पे है, तो इसके कारण अपने को फ्लोज जो है वो अपना जाना बंद हो रहे हैं और फ्लोज नए भी आना बढ़ रहा है। पद्मा नेक्स्ट। मूव नेक्स्ट। सो अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन में, हालांकि हमने वी हैव पुट दिस डेटा जिसमें आपको स्लाइड में पर्पस ये है कि दिखाने का कि जब भी ये जियोपॉलिटिकल टेंशन हुए हैं तो कुछ दिन के लिए मार्केट रिस्क में रहता है, 2 4 5 दिन 7 दिन, और उसके बाद ठीक हो जाता है। बट मैं आपको इससे दूसरा एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, मैं किस तरह से देखता हूँ। मुझे लगता है कि कोई भी इंसान के पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी होता है, चाहे कोई भी हो, जो वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो मैं वर्ल्ड को एक मार्केट देखता हूँ। तो अगर वर्ल्ड में अगर हर कहीं भी कंफ्लिक्ट हो रही है, उसका एक प्रभाव ये होता है, देखने का तरीका होता है कि बहुत अनसर्टेनिटी है, वोलाटिलिटी है, डर है, उसके कारण मार्केट थोड़ा मूव ऊपर नीचे हो सकता है। बट मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर दुनिया में कुछ, हालांकि मैं ये चाहता नहीं हूँ, वी ऑलवेज प्रे फॉर गुड हेल्थ एंड पीसफुल एवरीवेयर, बट अगर कहीं कंफ्लिक्ट हो रहा है तो हमें उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंफ्लिक्ट दूसरी जगह हो रहा है, हमारे यहाँ कहाँ हो रहा है। तो हमारे तो और फ्लोज आएंगे। हो सकता है 4 5 दिन कोई पैसा एसेट क्लास ही चेंज कर ले, यानी कि इक्विटी से एक बार डेट में शिफ्ट हो जाए तो सबका मार्केट गिरेगा, वो हो सकता है। बट लॉन्ग टर्म में तो अगर कहीं कंफ्लिक्ट चल रहा है तो वो ज्योग्राफीज नॉन इन्वेस्टेबल हो जाती है और हमारी ज्योग्राफी इन्वेस्टेबल हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कंफ्लिक्ट होता है उसका अपने को नुकसान होना चाहिए। आई जस्ट वांट टू शेयर डेटा कि इसराइल के तेल अवीव एक्सचेंज ने न्यू हाई बनाया है ये सारी कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में। दे आर फाइटिंग 5 wars। ऑन वन साइड दे आर फाइटिंग हिजबुल्ला, they are fighting Hamas, they are fighting Houthis, they are fighting Yemenis, and they are fighting in Middle now Iran also। एंड एक और है रीजन जहां पे भी उनकी फाइट चल रही है, उसके बाद भी उनका एक्सचेंज न्यू न्यू हाइज बनाता है। सारी प्रॉब्लम वहां पे है, हमारे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, उसके बाद भी हमारे यहाँ पे लोग डरते हैं और उनको लगता है क्या होगा। 1 2 दिन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ट्रेडर से शॉर्ट करके मार्केट को नीचे ला ही सकते हैं। बट अगर कहीं कंफ्लिक्ट हो रहा है, हम नहीं चाहते कहीं भी कंफ्लिक्ट हो, लेकिन कहीं कंफ्लिक्ट होता है तो उसका हमें नेगेटिव इंपैक्ट नहीं हो सकता लॉन्ग टर्म में। सो यही सिर्फ हम बताना चाह रहे हैं। हाँ, हमारा थोड़ा डिपेंडेंसी ऑयल पे है, और ऑयल में मूवमेंट आते हैं, ऑयल सर्ज होता है, लेकिन अभी हमारी कंट्री का टॉलरेंस है $75 तक, तो हमारे फिजिकल में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आता है। तो आई थिंक वो हम ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके कारण कोई अपने को बहुत डरने की जरूरत है। जब भी कोई भी कंफ्लिक्ट हुआ है तो मार्केट्स कुछ दिनों के लिए जिटरी रहता है, उसके बाद वापस रिकवर भी हो जाता है, उतनी तेजी से रिकवर होता है। नेक्स्ट। या पद्मा वी कैन मूव या। अभी नेक्स्ट स्लाइड जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। हमने पास्ट में देखा है कि जब भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ने चालू होता है तो कैपेक्स साइकिल ट्रिगर होता है। तो अगर आप देखेंगे लास्ट 2 साल से इंडिया में प्राइवेट कैपेक्स पिकअप नहीं हुआ है, जो कंसर्न था फाइनेंस मिनिस्टर का भी। फाइनेंस मिनिस्टर भी बोल रहे थे कि गवर्नमेंट जितना पॉसिबल उतना करती है, उसके बाद कुछ प्राइवेट कैपेक्स भी होना चाहिए, ये सबका कंसर्न था। पर ये एक डेटा है जो आपके सामने है। हमने पास्ट में भी देखा, जब भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एक लेवल के ऊपर चला जाता है तो प्रमोटर्स को वापस कैपेक्स चालू करना पड़ता है। हालांकि बिकॉज हमारा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ब्रांच भी है तो हमें इनपुट तो मिल ही रहा है ग्राउंड से कि अभी सारे प्राइवेट कंपनीज बहुत कैपेक्स कर रहे हैं। बट ये डेटा में भी आपको दिखना चाहिए, अभी दिखेगा, क्योंकि अभी अपना जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 75% पे पहुंच गया। अगर 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो जाता है, इसका मतलब अगर नया कैपेसिटी आने में 18 महीने भी लगते हैं तो आपको 8 से
9% की ग्रोथ लेते हो तो आपकी कैपेसिटी 92-93% पहुंच जाएगी जब तक नया कैपेसिटी आएगा, विच इज वेरी रिस्की, क्योंकि आपके पास बहुत सारे एसक्यूज होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सारे एसक्यूज 92% पे ऑपरेट करें, कुछ एसक्यूज आप ना भी बना पाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि एकदम टाइम राइप है जब बहुत बड़ा कैपेक्स आने वाला है। एक एसएनपी की रिपोर्ट भी आई है, उसने भी फोरकास्ट किया कि हमारा जो कैपेक्स है वो डबल हो जाएगा, 850 बिलियन हो जाएगा अगले 4-5 साल में, विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। तो मुझे लगता है जो प्राइवेट कैपेक्स के कारण अपने यहाँ पे कुछ कंप्लेंट्स थे लास्ट 2 साल में, कुछ कंपनियां अच्छा नहीं कर रही थी, अभी वो प्राइवेट कैपेक्स जोर से पिकअप हो रहा है, तो हमको बहुत बड़ा एक तेजी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पद्मा। ये स्लाइड है, ये हमने बहुत बार बात किया कि हमारी ग्रोथ इतनी बड़ी इकोनॉमी हो कि हमारी जो ग्रोथ की रेट है दैट इज वेरी वेरी सुपीरियर एंड सब्सटेंशियल। एंड ये जो हम 6.3 है, अब तो आरबीआई भी 6.5 का फोरकास्ट कर रहा है, लेकिन कुछ कुछ जो बड़े हाउसेस है वो 6.75-7% की भी बात करें, विच इज अ वेरी वेरी बिग जंप इन ग्रोथ वर्सेस एनीवन एल्स, एंड द गैप बिटवीन अस एंड द अदर इकोनॉमीज इज वेरी वाइड। ये मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इस स्लाइड पे किसी ने शायद अपने को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। हम लास्ट कई वर्षों से देख रहे हैं, पर्टिकुलरली अगर आप देखेंगे 2010 से लेके 2007 से, इनफैक्ट 2007 से लेके 2022 तक का पीरियड या इवन 25 तक का पीरियड, हालांकि क्योंकि हमारी कंट्री ग्रोइंग कंट्री है और हमारे यहाँ ग्रोथ अच्छी होती है, इसके कारण हमारा मार्केट में रिटर्न अच्छे बनते हैं, निफ्टी रिटर्न्स देते रहती है और अच्छी रिटर्न देती है। लेकिन जो एफआईआई है, जो जो यूएस डॉलर या दूसरी करेंसी लेके इंडिया में आया है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि करेंसी का भी उसको कॉस्ट लेना पड़ता है। तो हमने देखा कि हालांकि निफ्टी ने अच्छे रिटर्न्स दिए फ्रॉम 2007 टू 2025 ऑल्सो, बट जो भी रिटर्न दिया उसमें से एक मेजर पोर्शन रुपी डेप्रिशिएट होकर चला जाता है। नाउ दिस हैज बीन द रीजन दैट कंसिस्टेंटली अपने कंट्री से एफआईआई आउटफ्लो भी होते रहा है, बिकॉज हमको लगता है मार्केट ने 15% रिटर्न दिया, एफआईआई जब मैच करता है तो उसे टैक्स और करेंसी का डिप्रेशन निकाल के उसके उसको दिखता है कि उसे सिर्फ 8%, 6%, 7% या समटाइम उससे भी नीचे मिला है। तो मैं इस चीज पे मुझे लग रहा है कि ये कंप्लीटली गेम चेंजिंग टाइम आने वाला है, बिकॉज अगर आप देखें हमारी जो रुपी है उसका डिप्रेशन होने का 3 कारण है। सबसे बड़ा कारण क्रूड होता है, दूसरा कारण गोल्ड इंपोर्ट, और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। सो अगर आप क्रूड देखें तो अभी 1995 तक क्रूड में ऐसा था कि सबको अब क्रूड चाहिए था, उसके लिए लड़ाइयां हो रही थी, चाहे इराक ईरान वार हो चाहे कोई भी वार हो, सबको क्रूड चाहिए था, उसके लिए जंग कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। आज ये सिचुएशन है कि सबको क्रूड बेचना, उसके लिए लड़ रहे हैं। आज इंडिया पाकिस्तान का जो इश्यू है उसमें ट्रंप ने जो पाकिस्तान को साइड किया या हमें थोड़ा सा परेशान किया है, उसका मेन रीजन क्या है कि आप रशिया से ऑयल मत खरीदो और ईरान से ऑयल मत खरीदो, सिर्फ हमसे ऑयल खरीदो, राइट। तो अब तेल बेचने की लड़ाई हो रही है, तेल खरीदने की लड़ाई नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया को समझ में आ गया है कि जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी सोलर वगैरह पिकअप कर रहे हैं, तो ऑयल कैन नॉट बी एट हाई प्राइस फॉर लॉन्ग। और अगर आपने देखा होगा आज से 1 साल पहले तक हर 15 दिन में ओपेक मीटिंग करता था, सप्लाई कट करता था, प्राइस आर्टिफिशियली बढ़ाता था। सो अभी अभी वो उल्टा हो गया, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी अभी आप ओपेक की भी मीटिंग देखेंगे तो हर मीटिंग में वो यही बोलते हैं कि हमें और ज्यादा माल बेचना निकाल के, और उधर ट्रम्प भी बोल रहा है सारे दिन ड्रिल करो और माल बेचो। तो अभी क्रूड सबको बेचना है, लेने वाले हम जैसे सौभाग्यशाली 2-4 क्लाइंट ही हैं, चाइना और इंडिया है द बिगेस्ट कंज्यूमर। तो अभी मुझे लगता है क्रूड की प्राइसेस सस्टेनेबली ऊपर नहीं जा सकती। अभी वार मिडिल ईस्ट का 10 दिन 15 दिन में कॉल नहीं लेता हूँ, बट मुझे लगता है हर साल $4 से $5 क्रूड का प्राइस कम होगा। तो जो सबसे बड़ा बर्डन अपने आईएनआर पे डिप्रिसिएशन का आता है वो क्रूड से आता था, वो अब परमानेंटली स्ट्रक्चरली खत्म होने वाला है धीरे धीरे करके हर साल। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। तो आज से 6-7 साल पहले जब हमने पीएलआई स्कीम और ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करना चालू किया था, तब जो हमारा वैल्यू एडिशन होता था वो 1% होता था, यानी कि हम 100 रुपए का माल एक्सपोर्ट करते तो 99 का उसमें इंपोर्ट होता था, हमारा वैल्यू एडिशन बहुत कम था। आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी कि आज के दिन वो वैल्यू एडिशन करते करते हम करीब करीब 16% पे पहुंच गए हैं। 16% वैल्यू एडिशन हो रहा है और 84% नेट इंपोर्ट है। और जो मेरा बिलीफ और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ग्लोबली, हमने वर्ल्ड में देखा है डेवलपमेंट के हिसाब से 40% तक गवर्नमेंट को हेल्प करना पड़ता है, और जो जंप होता है हर साल 3-4% होता है। 40 के बाद बहुत जल्दी 70-80% हो जाएगा, क्योंकि फिर ये जो कस्टमर्स है जो अपने को जो कंपोनेंट बनाने दे रहे हैं, वो कंपोनेंट वो लोग बड़े कंपोनेंट, मोर क्रिटिकल कंपोनेंट भी बनाने दे रहे हैं जिनकी वैल्यू ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि ये सस्टेनेबल प्रेशर रिलीज करेगा अपने ऊपर, आईएनआर के ऊपर,
तो ये दूसरी रीजन है कि INR डिप्रिशिएट नहीं होगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि हमारे यहाँ पे गोल्ड बहुत इंपोर्ट होता था और प्रीशियस मेटल, तो जिसके कारण भी हमारी फॉरेन एक्सचेंज पे बहुत इम्पैक्ट प्रेशर आता था और रुपी डिप्रिशिएट होता। अभी गवर्नमेंट ने पिछले 2-3 वर्षों में बहुत सारी स्कीम लाके कस्टम, और कल तो नया रिस्ट्रिक्शन आया है रोडियम पे, जिसमें भी गोल्ड का कंपोनेंट सर्टेन परसेंटेज के ऊपर उनको भी कस्टम ड्यूटी के अंडर में ला रहे हैं। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट वहां से भी फॉरेक्स आउटफ्लो कम कर रही है। तो अगर ये तीनों चीज हो रही है विच इज हैपनिंग, तो मुझे लगता है कि अगले 6 महीने में आप लोग टीवी पे बहुत लोगों से सुनोगे जो अभी रुपये अप्रिसिएशन की बात करने लगेंगे। आज शायद कोई नहीं कर रहा है या एक आध लोग कर रहे होंगे। ये हमारा स्टैंड पिछले 2 महीने से है और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है अगले 3 महीने में ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट रैशनल बन जाएगा कि रुपये अप्रिशिएट होगा। अगर रुपये अप्रिशिएट भी नहीं होता है, स्टेबल भी रहता है, तो हमारे यहाँ बहुत FI फ्लो आएगा, बाढ़ आएगी FI की। उसका रीजन ये है कि अगर उनको ये पता होता है कि चलो अपने निफ्टी अर्निंग जो हमें बहुत कम लगती है कि 8-9% ग्रोथ है, 7% GDP ग्रोथ है, नॉमिनल GDP 12-11% ग्रोथ है और कॉर्पोरेट प्रॉफिट 13-14 से ग्रो होगा, तो हमें बहुत कम लगता है। लेकिन वो लोग पैसा कितना कमिटमेंट देके ला रहे हैं? 3%, 4%, 5% का कमिटमेंट देके ला रहे हैं। और अगर फॉरेक्स लॉस नहीं होने वाला है तो 3-4-5% के सामने अगर 10-12% होने वाला है, तो जो आर्बिट्राज है 9% वो इतना बड़ा है कि उनको 50 का मल्टीपल भी कम लगेगा इंडिया में। तो ये मैं आज आपको बोल रहा हूँ। अपन फिर मिलेंगे अगले महीने जब वेबिनार करने, आप मेरी कॉल याद रखना कि अपने को बहुत बड़ा रुपये अप्रिसिएशन का बेनिफिट स्लोली आने वाला है और बहुत बड़ा FI फ्लो इंडिया में आने वाला है। नेक्स्ट पद्मा, इन्फ्लेशन भी हमारा कम रहेगा क्योंकि क्रूड हमारा कम है और क्रूड पे हमारा स्ट्रक्चरल डिक्लाइन है। अपना सिर्फ एक जो रिस्क है इन्फ्लेशन का वो ये है कि अगर हमारे जो खाद्य पदार्थ है, जो पेरिसेबल प्रोडक्ट्स है, वेजिटेबल्स, फूड, ये हमें अगर कोई झटका ना दे तो मुझे नहीं लगता हमें कोई दिक्कत आएगी। और उसमें भी मुझे लगता है उनकी भी एबिलिटी नेगेटिवली शॉक देने की बहुत कम रह गई है। बेस इफेक्ट के कारण थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ेगा अगले साल क्योंकि हमारा बेस बहुत कम हो गया है इन्फ्लेशन का। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वी आर गोइंग टू द सिचुएशन ऑफ 7-8% इन्फ्लेशन विच वाज स्केरी, जिसके कारण वापस RBI को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़े। वो सिचुएशन नहीं आने वाली है। तो RBI मोर एकोमोडेटिव होते जाएगा और वो हो भी गया है और काफी अपफ्रंट किया है, बहुत बोल्ड स्टेप लिया है। गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली बोल दिया है प्राइवेट कंपनियों को कि भैया तुम्हारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75 हो गई है, तुम्हें कैपेक्स करना चाहिए। हम तुम्हें CRR कट दे रहे हैं, 100 बिप्स का लिक्विडिटी सिस्टम में पुश कर रहे हैं, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट काट रहे हैं, हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। आप भी थोड़ा अपने पर्स खोलो, पैसा खर्च करो, कैपेक्स बनाओ, कैपेक्स करो और इकोनॉमी के साइकिल को मूव करो। नेक्स्ट पद्मा, ये विक्स है। अगर आप देखेंगे कि वोलेटिलिटी इंडेक्स जब ट्रम्प 2019-20 के टाइम पे था, तो जब उनका बहुत झगड़ा चल रहा था US के चाइना के साथ, तो किस तरह से विक्स बढ़ा था एंड फिर वो कूल ऑफ हुआ था। एक अच्छी बात हुई है कि पिछले 2 महीने में लोगों ने ट्रम्प को सीरियसली लेना बिल्कुल बंद कर दिया है। अभी ट्रम्प कुछ भी बोलता है, कोई ट्रस्ट नहीं करता, तो मुझे लगता है विक्स बहुत जोर से शूट नहीं होगी अनलेस कि कोई न्यूक्लियर वेपन का यूज हो जाए या कुछ बहुत बड़ा नुकसान कहीं पे हो जाए जिसके कारण मल्टी प्रॉन्ग वार हो जाए। ऐसी न्यूज भी चल रही है कि रशिया इन्वॉल्व होगा, चाइना इन्वॉल्व होगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है, आई एम नॉट अ वार एक्सपर्ट, आप इसके लिए मुझे फ्यूचर में पकड़ना मत, बट मैं अपना व्यू इन अ डेमोक्रेसी आई कैन ऑल्सो शेयर माई व्यू। आई बिलीव that China has not fought any war in last 65-70 years. They will never get involved in any war directly. And Russia इतना ऑलरेडी फंसा हुआ है नेटो की तरफ से कि उसकी कोई एबिलिटी नहीं है, वो मुंह से कुछ भी बोले, उसकी एबिलिटी नहीं है और कोई वार में घुसने की। आज के दिन उसकी ये सिचुएशन है कि उसको जो फोर्सेस चाहिए वो नॉर्थ कोरिया से बोरो कर रहा है। नेक्स्ट, ये पोर्टफोलियो इनसाइट है किस तरह से पैड ग्रोथ है। अभी ये पैड ग्रोथ हमने डाला है बिकॉज इससे आपको एक इनसाइट मिलता है, बट मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगा कि सिर्फ पैड ग्रोथ देख के आप ये मत बोलिए, एक्सपेक्ट करिएगा कि हम सारे स्टॉक रिटेल के ले लेंगे, क्योंकि रिटेल के स्टॉक भी उतने महंगे हैं। तो हमें तो सही दाम पे सस्ता क्या, सही प्राइस पे क्या मिल रहा है वो लेना पड़ेगा। तो हम ग्रोथ और वैल्यूएशन दोनों को साइड साइड एक्स और वाई एक्सिस में प्लॉट करके उसके बाद खरीदते हैं जो हमें खरीदना है। और हमारा फोकस ये है कि अगले 5 साल में हमारे पोर्टफोलियो में 70% ऐसे स्टॉक होने चाहिए जो 30, 40, 50 गुना हो। और उस पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए अगर आप मुझे बोलेंगे कि हमें एक दिन में बिल्ड करना है, आप क्यों आज ही क्यों नहीं ले लेते, तो आज मुझे नहीं पता है। अगर आज मुझे पता होगा तो मैं वही लूंगा। लेकिन जब हम रिसर्च करते हैं, कंसिस्टेंट रिसर्च करते हैं, मैनेजमेंट्स के कथनी और करनी को ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें पता चलता है ये कंपनी स्ट्रक्चरल है और हम उसको लेते जाते हैं। बहुत सारे केस स्टडीज है, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा अगली स्लाइड्स में, तो आपको कुछ आइडिया लगेगा हम किस तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट पद्मा,
हमारे ये सेक्टर्स है जिसमें हम बहुत बुलिश हैं। बीएफएसआई, इसमें बीएफएसआई में हम बैंकिंग पे भी बुलिश है और नॉन लेंडिंग पे भी बुलिश है। इंश्योरेंस में मैं बहुत बुलिश नहीं हूँ। बैंकिंग पे हम बुलिश है, लेकिन 2 क्वार्टर के बाद पैसा बनेगा, क्योंकि अभी 2 क्वार्टर तो क्या है, इनको पास ऑन करना पड़ेगा जो रेट कट हुआ है, तो उसके कारण निम्स में कंप्रेशन आएगा, लेकिन 2 क्वार्टर बाद में बहुत तेजी होगी। लेकिन 2 क्वार्टर बाद एक्चुअल नंबर्स में तेजी होगी। स्टॉक तो करीब 1 क्वार्टर के बाद ही चलना चालू हो जाएगा, या इस रिजल्ट के बाद, इस रिजल्ट के दिन बॉटम हो जाएंगे सारे बड़े बैंकिंग स्टॉक, प्राइवेट बैंक, एचडीएफसी हो, एक्सिस हो, आईसीआईसी हो। मेरे को लगता है उनमें वापस बहुत अच्छा माहौल बनेगा। सेकंड, नॉन लेंडिंग में मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, यानी कि जो इंटरमीडिएरीज है, बीएससी है, सीडीएसएल है, कैम्स है, एंजल ब्रोकिंग है, इडलवाइस सिक्योरिटीज है, मोतीलाल ओसवाल है, ये सारे जो इंटरमीडिएरीज हैं उनमें हमें बहुत कॉन्फिडेंस है। हमको लगता है बहुत स्ट्रक्चरल स्टोरी है। मैं अब छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगले, अगर हमारी इकोनॉमी आज के दिन जो 4 ट्रिलियन की है, वो अगले 6 साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8 ट्रिलियन की हो जाएगी नॉमिनल ग्रोथ के हिसाब से। दैट मीन्स इन्फ्लेशन प्लस रियल ग्रोथ। मैं मानता हूँ कि 6.5 ट्रिलियन एक रीजनेबल नंबर है, जो सब एग्री करते हैं। 6.5 ट्रिलियन भी होते हैं तो हमारा जो गैप है 2.5 ट्रिलियन का एडिशनल जीडीपी जनरेट होगा। 2.5 ट्रिलियन, और मैं अगर इंडिया में एवरेज फिक्स एसेट टर्नओवर देखूं तो करीब 3-3.5 टाइम्स का होता है। वर्किंग कैपिटल भी 3-3.5 टाइम्स का होता है। यानी कि अगर 2.5 ट्रिलियन का इकोनॉमी एडिशनल ऐड होने वाला, तो करीब $800 बिलियन का फंड्स इन्वेस्ट होंगे। मतलब $800 बिलियन का कैपिटल लगेगा, जिसमें इक्विटी भी होगा और बैंक्स भी होंगे, बैंक फंडिंग भी होगी। मैं मानता हूँ 1:1 का रेशियो, यानी कि 400 बिलियन का इक्विटी और 400 बिलियन का कैपिटल बैंक फंडिंग। 400 बिलियन पैसा रेज करने के लिए जनरली आप देखेंगे जो फीस होती है मर्चेंट बैंकर की, सारा टोटल कॉस्ट मिला के 6-7% आता है। अपन कंजर्वेटिवली 5% गिनते हैं। तो 5% अगर होने वाला है 400 बिलियन में, तो $20 बिलियन की फीस जनरेट होगी। 20 बिलियन के डॉलर यानी कि 1.5 लाख करोड़ रुपए की फीस जनरेट होगी। आज के दिन जितने ब्रोकर है सब मिला के 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप नहीं है। तो अगले 6 साल में यहाँ से 15 गुना तो ये सेक्टर होना ही चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? तो हालांकि ये सिंपल मैथ्स है, इसमें कॉस्ट है, सब कुछ है, पर सब करके भी मेरा ये मानना है कि कुछ भी नहीं तो 8-10 गुना तो स्टॉक्स हो जाएंगे बहुत कंजर्वेटिवली। तो ये इस तरह से हम नॉन लेंडिंग को देखते हैं। कैपिटल गुड्स है। कैपिटल गुड्स में आप देखिए कि जितनी भी बड़ी क्रिटिकल मशीनरी है, वो आज भी चाइना से, स्वीडन से, बहुत सारी कंट्रीज से आ रही है, विच इज अराउंड 50-60% ऑफ द टोटल कैपेक्स। बट बाकी 40-45% एंसेलरी जितना लगता है वो सब इंडिया में बनने लग गया है। राजकोट से बनता है, वायर, केबल, पावर पावर सिस्टम, ट्रांसमिशन, कंट्रोल, जितना लगता है। हमने एक फैक्ट्री नहीं देखी है, कम से कम 100-125 फैक्ट्री हमने पिछले 2 साल में देखी है। हमारे पास डिटेल है। कोई भी फैक्ट्री में 50% से ज्यादा का इंपोर्टेड मशीन नहीं है। बाकी 50% जो कैपेक्स है वो डोमेस्टिक है। तो कैपेक्स में बहुत बड़ा पुश आएगा। इंडिया ग्रो नहीं हो सकता जिस इकोनॉमी 6.5-7 ट्रिलियन की, जब तक कैपेक्स नहीं। और कैपेक्स होगा तो 50% गवर्नमेंट कोशिश करेगी वो 50% क्रिटिकल मशीनरी भी इंडिया में बनने लगे। मुझे लगता है उसमें वक्त लगेगा, लेकिन बाकी 50% तो अपने हाथ में है। तो अगर ये $450 बिलियन का कैपेक्स होने वाला है, तो $200 बिलियन डोमेस्टिक कैपिटल गुड्स यूज होगा, जिसमें केबल, वायर, ये सब होगा। तो वो $200 बिलियन, यानी कि अगर उसको 20 का मल्टीपल देते हैं तो $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप सिर्फ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री से खड़ा हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा एक स्पेस है जहां पे हम सुपर बुलिश हैं। और तीसरा है पावर। पावर इंडस्ट्री को चलाने के लिए पावर चाहिए, एआई के लिए पावर चाहिए, सब चीज के लिए, सोलर के लिए भी पावर चाहिए, सब चीज के लिए पावर चाहिए। तो पावर एक बहुत बड़ा थीम है, और हम पावर के थीम को खेल रहे हैं बहुत सारे प्रॉक्सीज के थ्रू। अगेन, पावर और कैपिटल गुड्स की जो कॉमन थीम है वो केबल, वायर, ट्रांसफॉर्मर ये है। आज के दिन काफी सारे स्टॉक्स महंगे लग रहे हैं, 35-40 टाइम पे लग रहे हैं, लेकिन अगर आप ये देखो कि 5 साल में उनकी अर्निंग्स कहाँ होगी, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा पैसा इन सब स्टॉक्स में बनेगा। हम इस पे बहुत सारा काम भी कर रहे हैं, एंड हमारे पास बहुत डिटेल वर्किंग है हर कंपनी में जो हम ट्रैक कर रहे हैं। नेक्स्ट पद्मा। ये कुछ स्टोरीज है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। हालांकि ये आप लोगों को पता भी होगा। एक ये स्टॉक है इन्वायरो इंजीनियर। ये कंपनी 2023 में हमारे पास आई थी प्री आईपीओ करने के लिए, क्योंकि इसने जिस मर्चेंट बैंकर को मैंडेट दिया था उसका पहला मेन बोर्ड मैंडेट था, तो उसने कभी पैसा मेन बोर्ड का काम किया नहीं था। तो उनका पैसा रेज करने की एबिलिटी नहीं थी, तो उन्होंने हमको अप्रोच किया था कि आप हमें पैसा रेज करके दो। तो मैंने इनको इंडिया के बेस्ट इन्वेस्टर से पैसा रेज करवा के दिलाया था। उस टाइम हमारे पास
स्ट्रक्चर नहीं है पीएमएस में जहां हम अनलिस्टेड ले सकते हैं, तो हमने 66.4 रुपीज में ये शेयर लिया था। लेकिन हमने 2 साल इस मैनेजमेंट के साथ कंसिस्टेंटली काम किया। ये कंपनी का आईपीओ लास्ट ईयर आया था 147 रुपए में, लिस्ट 220 रुपए में हुआ, और 220 रुपए पे हमने लिस्टिंग के डे पे लिया क्योंकि हमें पता था इसमें बहुत पैसा बनेगा, बहुत अच्छी कंपनी है। स्टॉक 380, हमने सोचा था कि 18 महीने में डबल 50% 60% बनेगा। 20 दिन में ये 380 रुपया हो गया, तो हमने इसको बेच दिया क्योंकि रिस्क के पार्ट से और इतना ज्यादा रिटर्न सडनली बन गया, तो हमें लगा कि ये 2-3 साल के लिए भी टाइम करेक्शन हो जाएगा, तो हमने बेच दिया। वापस अभी 220 पे जब आया तो हमने इसको वापस लेना चालू किया, हमारे कोर पोर्टफोलियो में पीएमएस में है। सिमिलरली पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की एक बहुत अच्छी कहानी है। 2021 में जनवरी में ये कंपनी कुछ 5-6 रुपए पे थी, और इसमें इसके ओनर का नाम भी प्रमोद गुप्ता है, 2 भाई है। और इसमें एक प्रमोद गुप्ता करके एचडीएफसी लाइफ के हेड ऑफ इक्विटीज हुआ करते थे, वो वहां गए थे ज्वाइन करने। उनको मैं सर्विस करता था जब मैं इडलवाइज में था। तो मुझे लगा कि ये बंदा इतनी बड़ा पोजीशन छोड़ के इतनी छोटी 200 करोड़ से भी कम की मार्केट कैप की कंपनी में जा रहे हैं, तो कुछ बड़ा होने वाला है। हमने उनके साथ कंसिस्टेंट इंटरेक्शन रखा, हमने समझने की कोशिश की कि क्या थीसिस नहीं है। तो हमने पहले, हमारे पास उस टाइम आरआई लाइसेंस था, हमने आरआई में भी ये स्टॉक लिया था। हालांकि हम 7.5 रुपए पे नहीं ले पाए थे जिस भाव पे प्रमोद ने ज्वाइन किया था। हमने इसको 15-16 रुपए पे लिया, फिर हमने आरआई जब हमारा लाइसेंस था उसमें इसमें 10-15 गुना शायद रिटर्न बनाए, और जैसे हमें पीएमएस मिला हमने उसमें भी इसको लिया। और अभी हमने 1040, 980, 925 अलग अलग भाव पे बेचा है मेजोरिटी ऑफ पोर्शन। अब ये 700 के आसपास जब से आया तब से हम इसको फिर से इवेल्युएट करने लगे। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी हमें इसलिए भी बेचना पड़ता है कि हम जब खरीदते हैं तो 2-3% वेट होता है, लेकिन उसका वेट अगर स्टॉक 4-5 गुना हो जाएगा तो 10% हो जाता है, जो हुआ है हमारे साथ। तो हमें उसको ट्रिम भी करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी थ्योरी या थीसिस चेंज हो गई है, लेकिन रिस्क एंड कंप्लायंस और पॉलिसी जो हमने सबमिट किए सेबी को, उसके हिसाब से हमें उसे बेचना पड़ता है। सिमिलरली बीएससी की थीम है, हमने ये स्टॉक भी, या आज जो भाव है उससे 3-4% भाव पे, यानी कि व्हेन इट वाज 1/30 ऑफ टुडेज प्राइस, उसके आसपास आरआईए में लेना चालू किया था। हमारी थीसिस सिंपल थी। मैं हांगकांग एक कॉन्फ्रेंस में गया था, और उस टाइम ये कंपनी का मार्केट कैप 3-4 हजार करोड़ होता था। तो ये इनके जो रामामूर्ति नए, जो अभी अभी जो एमडी है वो नए आए थे, वो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे और उनसे मिलने कोई भी नहीं आ रहा था, क्योंकि हांगकांग सिंगापुर के इन्वेस्टर को बड़ी लिक्विड बड़ी कंपनियां चाहिए, उनको 3-4 हजार करोड़ की कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो ये अकेले बैठे थे, मैं जाके उनसे कार्ड एक्सचेंज किया, उन्हें लगा कि मैं क्लाइंट हूँ, तो मुझे एक मॉरल ऑब्लिगेशन हो गया, उनके साथ बैठना पड़ा। पर मैंने जब बैठा 45 मिनट, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे इंटरेक्शन करके। मुझे समझ में आया कि ये आदमी बहुत बड़ा बागी है, और ये सिंपली रहने वाला नहीं है, ये सबसे लड़ाई झगड़ा करके अपना बिजनेस ग्रो करेगा। उसके अंदर बिल्कुल डर नहीं था कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ या मैं क्वाजी गवर्नमेंट हूँ। उसका यही था कि बीएससी भी एनएससी जैसा बनना चाहिए, उसके अंदर जुनून था। और मैंने उनके साथ कम से कम 20 इंटरेक्शन किए। हमने थोड़ा थोड़ा स्टॉक उसी टाइम उस मीटिंग से रिटर्न आने के बाद आरआई में लेना चालू किया। और अभी हमने जाके, जब ये स्टॉक बहुत बड़ा वेट हो गया हमारे पीएमएस में और बहुत रिटर्न्स बन गए, तो हमने इसको थोड़ा थोड़ा ट्रिम किया है। और अभी वापस अगर ये बहुत नीचे आया तो हम इसको वापस लेंगे। और ये जो चौथा स्टॉक है, ये तो पास्ट की हिस्ट्री है, मेरे को पता है आप लोगों को इसमें कोई इंटरेस्ट ज्यादा होगा नहीं, जो हो गया सो हो गया। लेकिन फ्यूचर का मैं बता रहा हूँ, अभी हमने नया स्टॉक बहुत जोर से एडिशन करना चालू किया, लैंडमार्क का। ये कंपनी लास्ट ईयर आईपीओ में आई थी, बहुत डिमांड था इसका, 506 रुपए पे इसका आईपीओ आया था, लिस्ट हुआ कुछ 800 पे। इंडिया के सारे बेस्ट इन्वेस्टर इसमें आ गए, सब आ गए। जबकि कंपनी बार बार बोल रही थी कि अभी हम कैपेक्स करेंगे और 2 साल हमें स्टोर खोलने में, वर्कशॉप खोलने में लगेगा। लेकिन सबने बहुत खरीदा, स्ट्रक्चरल स्टोरी, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज, ये वो सब हमने तभी नहीं लिया। हमने मैनेजमेंट के साथ बहुत काम किया। अभी मैं आपको बताता हूँ, हमने इसको 15 दिन पहले से लेना चालू किया, 414-15 के भाव से पीएमएस में। अनफॉर्चुनेटली इलिक्विड भी है, और कुछ लोगों को ट्रेड पता चलता है तो कॉपी भी कर लेते हैं। तो स्टॉक बहुत जोर से भाग गया है, हमें जितना चाहिए उतना हमें अभी तक मिला नहीं है। लेकिन इस कंपनी में स्टोरी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, 6,000 करोड़ की कार बेचता है, जिसमें 2100 करोड़ की मर्सिडीज बेचता है, 1400 करोड़ की सिटी होंडा बेचता है, एमजी एक्टर बेचता है, वोल्क्सवैगन बेचता है, बहुत सारे मॉडल बेचता है। उसमें इनको 3.5% का मार्जिन मिलता है, जो कि बहुत मिनिस्क्यूल है, मतलब बहुत कुछ नहीं है, 200 करोड़ रुपया। लेकिन जो सर्विसेज बिजनेस है, जिसका अभी एनुअल रन रेट 1,000 करोड़ रुपया हो गया है, वो सर्विसेज बिजनेस में एक मर्सिडीज जब सर्विस के लिए जाती है 97,000 का बिल बनता है। मैंने उसका पूरा वर्किंग किया, उसमें सिर्फ 1150 रुपए का इंजन ऑयल का खर्चा, दूसरा कोई खर्चा नहीं है। और एक सिटी होंडा 28,000 रुपए में सर्विस होती है, उसमें 850 रुपए का इंजन ऑयल का खर्चा, दूसरा कोई खर्चा नहीं है। बाकी सब चीज बहुत ही मिनिस्क्यूल है। तो यानी कि ये 80-90% मार्जिन का धंधा है। अभी कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन दिख रहा है इस धंधे का, वो 42% दिख रहा है। वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसने लास्ट 2 साल में बहुत सारे वर्कशॉप खुले हैं जहां पे अभी कार्स नहीं आ रही सर्विस में, उसने 18 से 24 महीने का पीरियड लगता है।
तो मेरा ये मानना अगले 5 साल में आज के दिन जो ग्रॉस मार्जिन है वो एबिटा मार्जिन, और जो आज एबिटा मार्जिन वो पैट मार्जिन हो जाएगा। और ये अभी इसका सर्विसेज बिजनेस 30-40% से ग्रो हो रहा है, मैं कंजर्वेटिवली 20% ग्रोथ लेता हूँ। मुझे लगता है अगले 6 से 7 साल में इसका पैट 700 से 800 करोड़ रुपया वेरी कंजर्वेटिवली हो जाएगा। इसमें 700 से 800 करोड़ का अगर पैट होता है तो इस बिजनेस को 40 से 50 का मल्टीपल मिलेगा, क्योंकि ये हाई आरओई आरओसी बिजनेस है, सुपर डुपर नीट एंड क्लीन मैनेजमेंट है, कोई आड़ा टेढ़ा काम नहीं करता, बहुत अच्छे लोग हैं। आपका ये हो सकता है 45 से 50,000 करोड़ मार्केट कैप हो जाए। आज मैं आपको लैंडमार्क वहां बता रहा हूँ जहां मैंने जिस तरह से मैंने बीएससी और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को देखा था। तो हम ये आइडिया से शेयर कर, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ आप लो, मैं सिर्फ आपसे ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि द वे हाउ वी थिंक। तो ये मुझे लगता है कि अगले 7-8 साल में कम से कम 30-40 गुना होना चाहिए। हालांकि अगर ये बहुत जल्दी बढ़ गया और बहुत ऊपर चला गया, इसका वेट हमारे रिस्क लिमिट से ऊपर चला गया, तो हमें ट्रिम भी करना पड़ेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कन्विक्शन खत्म हो गया है। पद्मा नेक्स्ट। सो ये मोटा मोटा है। हम लोग की टीम जो है लेड बाय पद्मावती, बहुत हमने इन्वेस्ट किया रिसर्च पे, और हम बहुत रिसर्च पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम आपको सिर्फ यही बोलेंगे कि आप हमारा परफॉर्मेंस देखिए। मुझे पता है कुछ लोग मार्केट के पीक पे आए हैं और उनके कारण आज उनका पोर्टफोलियो 4-5% नेगेटिव भी होगा। आप थोड़ा पेशेंस रखिए। हम सारे दिन यही काम कर रहे हैं, हमारा खुद का सारा जो पैसा है सारे फाउंडर्स का भी इसी में लगा हुआ है, और हम बहुत मेहनत करके पैसा बनाने का सोच रहे हैं। और हमारा आइडिया बहुत क्लियर है कि हम स्लोली अपने पोर्टफोलियो में सारे स्टॉक्स वैसे ले आएंगे जो अगले 7-8 साल में 30-40 गुना हो। ये हमारा टारगेट है। होगा नहीं होगा भगवान के हाथ में, इकोनॉमी मेरे हाथ में नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ये। बट हम जो भी कर रहे हैं प्योर रिसर्च से कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई दूसरा मैकेनिज्म नहीं है स्टॉक खरीदने का। जो भी स्टॉक हमने खरीदे हैं उसमें हमारा फंडामेंटल मिस्टेक हरिओम पाइप में हुआ है, वो भी ये हुआ है कि मैनेजमेंट को पहचानने में हमने गलती की। हमने 20 बार उनसे मिले हैं, हमें कभी नहीं लगा कि वो इस तरह से बिजनेस डाइवर्सिफाई कर देंगे। हमारा बहुत बड़ा वेट था हरिओम में 5%, और उसमें हमें बहुत नुकसान हुआ। उसके कारण हमारा परफॉर्मेंस 1-2% ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। बट हम पूरा रिकवर कर लेंगे, और हम रिकवर कर भी रहे हैं और बहुत तेजी से रिकवर कर रहे हैं। आप हमारा मई का परफॉर्मेंस देखिए, और जून में हम बहुत अच्छा करेंगे। तो मुझे पूरा यकीन है कि हमने जो जर्नी चालू की है वो बहुत अच्छा करेंगे। और मैं आपको एक ही बात कहूंगा, आज हमारा एयूएम हो सकता है छोटा है, लेकिन हिंदुस्तान में कोई भी फंड मैनेजर, हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में कोई भी फंड मैनेजर या सीआईओ जिसने इंडिया में इन्वेस्ट किया है कभी, उसको मैंने जरूर सर्विस किया, उसको मैंने जरूर बताया कि कौन सा स्टॉक लेना है कौन सा नहीं लेना है। तो अगर मैंने लोगों को बताया है जिन्होंने इतने बड़े बड़े एयूएम खड़े किए हैं, हालांकि मैंने उनको सिर्फ टीएमटी में गाइड किया, यानी कि टेक्नोलॉजी मीडिया टेलीकॉम, विच इज स्टिल 45% ऑफ द इंडेक्स वेट, तो मैं मेरा पोर्टफोलियो जरूर अच्छा रन कर पाऊंगा। और शायद मेरे पास 10 से 15% का प्राइस एडवांटेज हमेशा रहेगा, क्योंकि मैं रिसर्च का निर्माता हूँ। हम हमारी टीम रिसर्च करती है, हम रिसर्च करके आइडिया निकालते हैं। हम लोगों को बताते थे कि आपको क्या लेना है, तो ऑब्वियसली उनको हम जब बताते थे तो उनको तो 10-15% एक्स्ट्रा देके लेना पड़ता था, क्योंकि स्टॉक चल जाता था। तो आज हम अगर खुद इनोवेट कर रहे हैं आइडिया को, तो हमारे पास जो एडवांटेज है वो किसी और के पास तो नहीं होगा। तो हम बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी टीम के ऊपर। हमारी टीम में बहुत अच्छे रिसोर्सेज हमने लिए हैं। आप उनका प्रोफाइल देखिए, बेस्ट टैलेंट इन द कंट्री हमने हायर किया है, और हमें पूरा यकीन है कि हम बहुत अच्छा करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। I will be happy to take few questions, Nitesh ji. We have a hard stop at 12. After that, Padma can take more questions. Sandeep ji, will just wait for 2-3 minutes. There are few questions which have come in, and there are few basic questions which normally an investor or a distributor channel partner has. वो भी हम cover करेंगे. We'll just wait for 2 minutes on that. Anyone having questions, I would really request if you can just post it on the group so that we can address it one by one. Sandeep ji, I'll just start a few questions over here. How frequently do we rebalance portfolio
and our strategic pivot that may be possible in financial year 2026? So we generally have two reasons to do rejig of our portfolio. पहला है कि अगर कोई स्टॉक बहुत सडनली बहुत जोर से बढ़ जाता है, उसका वेट बढ़ जाता है, तो रिस्क कंप्लायंस पॉलिसी के हिसाब से हमें ट्रिम करना पड़ता है. दूसरा है कि ये जो नवंबर के बाद वर्ल्ड में चेंजेस आए हैं, जो टैरिफ के चेंजेस हैं, कुछ कुछ सेक्टर में इम्पैक्ट है, उसके कारण आपको पिछले 2 महीने में 2.5 महीने में ज्यादा चर्न दिखा होगा. जनरली हम लोग चर्न नहीं करना चाहते हैं, वही चीज खरीदते जो स्टेबल हो. बट ये जो ट्रम्प कर रहा है, मुझे यकीन है आप मेरे साथ सहमत होंगे कि ये दुनिया में किसी को नहीं पता वो कब क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है. हम आज के दिन इस सिचुएशन में हम मारियो गेम की तरह हो गए हैं ट्रम्प के कारण, कि हमें बच बच के निकलना पड़ रहा है. तो ये एक आध महीना और रहेगा. ट्रम्प की बातों का वैल्यू अब बहुत कम होते जा रहा है मार्केट्स में. आप लोगों का मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि एक आध महीना शायद थोड़ा और चर्न हो, उसके बाद मुझे लगता है चर्न बहुत जोर से नीचे आ जाएगा. तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि चर्न में कमी आएगी. अभी हमें सिर्फ इसलिए बचाना पड़ रहा है कि हमें पता नहीं वो आदमी किस पे क्या टैरिफ लगा दे, किस पे क्या रिस्ट्रिक्शन लगा दे. इसके कारण हमको थोड़ा सा कॉशियसली चल रहे हैं और बचा के चल रहे हैं. The second question is, there has been talks for capex rebound multiple times in the past too, but the cycle has failed to turn around. What gives you conviction that this time it will be different and we will indeed see capex revival? इसको देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसने भी पूछा, आई विल थैंक हिम. तो 60% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जब हो जाता है तो उसके बाद हमेशा कैपेक्स होगा. इसके Questions will help us, sir. 60% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होने के बाद कैपेक्स होना चाहिए. ये एक वर्ल्ड में माना हुआ रूल है. चैलेंज ये हुआ है, और अगर आप देखेंगे पास्ट में जब भी बात हुई तब तभी हुआ जब 60% क्रॉस हुआ है. अनफॉर्चुनेटली प्रमोटर्स, प्राइवेट प्लेयर्स, फॉर वट एवर रीजन, इलेक्शन का आउटकम 240 सीट्स है या कुछ भी है, उसके कारण इस बार बहुत खींच गया है. तो पिछले 3 साल पहले ही 60% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन टच हो गया था लगभग, लेकिन 3 साल से हुआ नहीं है कैपेक्स. लेकिन मुझे लगता है 75% पे आप आ गए हैं. 75% के बाद आपके पास खींचने का कोई जगह ही नहीं बचा है. क्योंकि अगर आप ये मान लें कि आपकी जीडीपी ग्रोथ 6.5%, तो कोई डाउट नहीं, सब कोई डिबेट भी नहीं है. और 6.5% जीडीपी ग्रोथ होगी तो कंपनी की ग्रोथ तो जनरली 2x होती है. मैं मानता हूँ 1.5x कंजर्वेटिवली लेता है तो भी 10% ग्रोथ, तो नेक्स्ट 2 साल में 10% होंगे तो 95% हो जाएगा. मुझे आई एम 100% श्योर कि इस ग्रुप पे बहुत सारे बिजनेसमैन होंगे, उनको पता है कि वो किस लेवल पे जाके कैपेसिटी वापस चालू करते. तो मुझे नहीं लगता है कि ये इस बार वो पुरानी बात है. 60 से 75 आपने खींच लिया है, 75 से आप खींच नहीं पाओगे. एक आध महीना खींच लोगे अलग बात है, बाकी आप नहीं खींच पाओगे. Sandeep ji, this is a portfolio specific question. What is your return view on a multi-cap portfolio in the normal market conditions for next 1 year? Or how much alpha can we expect compared to benchmark? तो मैं बहुत सिंपल है. मैं 3 चीजें बोलूंगा. मुझे लगता है कि हमारे देश में अगर पॉलिटिकल साइड पे कोई घटना ना हो जाए, जो नेगेटिव घटना, कोई पॉलिटिकल लीडर का असैसिनेशन वगैरह ना हो जाए, कोई न्यूक्लियर वार कहीं पे ना हो जाए, अगर ये दो तीन टाइप की बड़ी रिस्क नहीं होते जो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, तो मुझे लगता है हमारे निफ्टी में ही बहुत बड़ा रिटर्न आने वाला अगले 1 साल में. आई एक्सपेक्ट 15-20. मैंने पिछली बार भी जब वेबिनार हुआ था मैंने बोला था विल मेक ऑल टाइम हाई बिफोर सितंबर. वो तो करेंगे ही करेंगे, उससे भी हम बहुत ज्यादा करेंगे. मेरे को लगता है 15-20% ग्रोथ तो निफ्टी में अगले 3-4 साल आनी चाहिए. और जो मिड और स्मॉल कैप है उसमें कम से कम 4 से 5% और ज्यादा ग्रोथ आएगी निफ्टी से भी. और हमारा पोर्टफोलियो उससे भी 4-5% ज्यादा करना चाहिए, नहीं तो मेरा इतना मेहनत करने का, पद्मा का इतना मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है. तो दैट इज द वे आई विल आंसर दिस क्वेश्चन एंड इट विल रिफ्लेक्ट. वी आर वेरी Sandeep, कॉन्फिडेंट. the next question we have already answered, where you see Nifty in the next 1 year, that you have already covered up. There are another two questions. What are opportunities renewable segment? रिन्यूएबल सेगमेंट में क्या हुआ सर कि रिन्यूएबल में दुनिया की सबसे बड़ी कैपेसिटी चाइना में पड़ी है बन के, और चाइना उसको कोई भी तरीके से एंड मार्केट में पहुंचाएगा. ये जो स्टॉक्स अपने यहाँ पे खड़े हैं वो इसलिए अभी तक खड़े हैं, जो भी नए आए हैं, क्योंकि ट्रम्प ने अभी बहुत टाइट कर रखा है. पर ये जिस दिन में इनका नेगोशिएशन हो जाएगा, माल डंप होना चालू हो जाएगा. मेरे ख्याल से अपने को रिन्यूएबल में नहीं घुसना चाहिए. हमने कोई रिन्यूएबल का स्टॉक भी नहीं लिया है, बहुत बहुत रिस्की है. सारे आप देखिए वेफर की प्राइस 67% क्रैश हुई है 1 साल में. तो अपने को ये कमोडिटी बिजनेस में नहीं जाना चाहिए. स्टॉक्स मैसिवली इन्फ्लेटेड है. हमको कंफर्ट नहीं है उस सेक्टर में. What is the view on data center business? डेटा सेंटर बिजनेस में सर क्या है, डेटा सेंटर बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन डेटा सेंटर में जो लोग हैं वो आज के दिन अच्छे नहीं. तो हमारे पास जो प्लेयर्स है ना खेलने के लिए वो अच्छे नहीं है.
मैं कोई प्लेयर का नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज इट इज नॉट फेयर ऑन मी, बट जो भी ऑप्शंस अपने पास आज के दिन है दे आर नॉट गुड ऑप्शंस। वो मैनेजमेंट का पास्ट में चेकर ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे, इसलिए हम उसको प्रॉक्सी खेल रहे हैं। तो डेटा सेंटर और पावर सिमिलर ही चलने वाला है, तो हम पावर खेल रहे हैं और हमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि केबल वायर में बहुत पैसा बनेगा। The next question, Sandeep ji, with so many wars, how are defense sectors going to perform? तो डिफेंस सेक्टर में क्या हुआ है कि अभी डिफेंस सेक्टर में अपने यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है, पॉजिटिविटी बहुत है, बट नंबर्स नहीं आएंगे। आप नंबर्स देखिए कोई भी एनालिस्ट के उठा के, एक बहुत अच्छी रिपोर्ट है अमित दीक्षित की, आईसीआईसी सिक्योरिटीज के एनालिस्ट है, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है और वो बहुत टैलेंटेड बंदा, केमिकल इंजीनियर है और IIM अहमदाबाद से पास आउट है। उसकी आप रिपोर्ट पढ़िएगा, अगर चाहिए तो हम लोग आपको फॉरवर्ड भी कर देंगे। उसमें सारे कंपनियों के एस्टिमेट्स दिए और वो एस्टिमेट्स भी मीट नहीं होंगे, और अगर वो एस्टिमेट्स हैं तो स्टॉक्स यहाँ से कम 60% नीचे आने चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ नीचे आएंगे, क्योंकि यूफोरिया में बहुत लंबे टाइम तक मार्केट कैन बी इरेशनल फॉर लॉन्गर देन यू कैन बी रैशनल, बट मैं तो इस बात, मुझे बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस मिल रहे हैं सर, मैं क्यों डिफेंस में इतने महंगे स्टॉक्स खरीदूं। तो मुझे नहीं लगता है कि डिफेंस में हमें जाना चाहिए। वार्स अपनी जगह पे, वार विल बिकम अ वे ऑफ लाइफ। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसराइल का मार्केट न्यू हाई बना रहा है, 2 साल से वार में है। रसिया यूक्रेन में कितने लोग मरे आज तक किसी को पता नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो बहुत सेफ जगह पे बैठे हैं, हमारे बहुत अच्छी मैच्योर लीडरशिप है जिसने 2 दिन में अपना काम किया और सब चीज शांत कर दिया, इकोनॉमी में फोकस आ गया। हमारी GDP ग्रोथ 6.5 से ऊपर आएगी, हमारा इन्फ्लेशन कंटिन्यूसली कम है, हमारा बॉन्ड यील्ड्स कम है, हमारा फॉरेक्स आउटफ्लो कम है। दुनिया का जन्नत है इन्वेस्टमेंट के लिए ये। तो मुझे तो इसमें ही रहना है और मुझे कोई हॉट सेक्टर टच नहीं करना है, तो मैं फिर से मुझे नुकसान हो जाएगा। The next question is on our cash holdings. Our cash holdings are near nil despite the recent sharp run up in the markets. Isn't it prudent to maintain some cash balance to deploy during times of corrections, if any? ये आप कोई भी फंड मैनेजर का सुनिएगा, और मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, कभी भी कैश बैलेंस रख के रिटर्न ज्यादा नहीं बन सकते। हाँ, एक मेंटल कंफर्ट बहुत आता है, बहुत कंफर्ट आता है कि मेरे पास पैसा है मैं खरीद लूंगा, ये पक्की बात है। और थोड़ा पैसा जेब में होना चाहिए, मैं पर्सनली मानता हूँ हमें 2-3% कैश रखना चाहिए। वो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो 7 दिन में एक आध दिन होता है जब नील रहता है, 2-3 दिन रहता है जब हमारे पास 2-3 टका रहता है। अगले 1 महीने में हमारा पोर्टफोलियो काफी अच्छे स्टॉक्स में धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। आप ये बोल सकते हैं कि आज ही शिफ्ट कर दो, मुझे पता है जहाँ पे हम शिफ्ट कर रहे हैं वो 5-6-7 साल की स्टोरी है, तो वो स्टॉक इमीडिएट रिटर्न नहीं देंगे। और जो हमारे पास है वहां पे अगले 1-1.5 महीने में बहुत रिटर्न बनने वाला है, तो हम उनका जब रिटर्न बन जाएगा वो महंगे हो जाएंगे, तो उनको ट्रिम करके कैश पर शिफ्ट होंगे, फिर कैश से हम अच्छे स्टॉक में वापस शिफ्ट, जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए मल्टी बैगर रखने उसमें शिफ्ट होंगे। इन द मीन टाइम कभी ज्यादा रहेगा कैश, कभी कम रहेगा। हम पर्सनली बिलीव नहीं करते बहुत कैश रखने में, कैश रख के सिर्फ नुकसान होता है, कुछ फायदा नहीं था। मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है कि मेरे पास पैसा है। Sandeep ji, the next question is, what do you think about the companies regarding Indian small or medium oil exploration and producer companies, even if crude oil sustain at $60 to $65 for long term? नहीं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज है, जैसे एक सेलन एक्सप्लोरेशन है जो स्मॉल साइज ऑयल एंड गैस कंपनी है, बहुत सारी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। प्रॉब्लम ये है कि हम कितने स्टॉक्स लेंगे। तो अब ये क्या ऑयल ऑयल क्या ग्लोबल कमोडिटी, कमोडिटी से हम लोगों को थोड़ा डर लगता है, क्योंकि कमोडिटी के बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं। सो कमोडिटी नहीं खेलेंगे अपन, उसकी जगह अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको प्ले करने के लिए सबसे अच्छा प्ले OMCs। हम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी विल टेक अ पोजीशन इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, दैट Okay. विल बी अ बेटर प्रॉक्सी। Sandeep ji, last two questions. Which sectors to be avoided for next 5 years? आई थिंक कंज्यूमर जो ये खाने पीने का सामान बेचते हैं ये नहीं चलने वाले। उसका रीजन सिंपल है, हमारी जो फर्टिलिटी रेट है वो 2% से नीचे आ गई है। तो अगले 10-15 साल 20 साल आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ 1-1.25% रहेगी, तो वॉल्यूम ग्रोथ 3-4% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये लोग सब फर्जीवाड़ा करते हैं, ग्रामेज कम करते जाते हैं और प्राइस सेम रखते हैं। जो 5 रुपए में पार्ले आता था आज वो उतना क्वांटिटी पार्ले 20 रुपए में 15 रुपए में नहीं मिलता। तो हर साल 10-10 ग्राम ग्रामेज कम कर रहे हैं थैलियों में, सामान जिसमें बेच रहे हैं, प्राइस सेम रख रहे हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि वॉल्यूम प्लस प्राइसिंग मिला के 4-5% से ज्यादा का ग्रोथ स्ट्रक्चरली नहीं आ सकता। जब जब गवर्नमेंट पैसा बांटेगी तब तब एक बार ये 1 महीना ये स्टॉक्स 15-20% रिटर्न देंगे, फिर मर जाएंगे। तो हम तो ये सब स्टॉक्स नहीं लेंगे, सोलर नहीं लेंगे और ये नहीं लेंगे, Uh, कंज्यूमर नहीं लेंगे, खाने वाले स्टॉक्स, खाना खाना पीने वाले स्टॉक नहीं लेंगे। the last question for Alpha generation.
how much can be attributed to sector allocation versus how much can be attributed to stock pricing? सेक्टर एलोकेशन का टाइम खत्म हो गया है, क्योंकि सेक्टर एलोकेशन में से पैसा अब नहीं बनेगा। वो 2021, 22, 23 लॉटरी पीरियड था, वो खत्म हो गया है। अभी बॉटम अप स्टॉक में पैसा बनेगा। स्टॉक ढूंढो और पैसा बनाओ। स्टॉक में भी मैं आपको थीम बता देता हूँ सिंपल, जैसे हम सोच रहे हैं। जहां भी पर कैपिटा इनकम का थीम है, यानी कि वॉल्यूम नहीं है, सामान का क्वांटिटी, प्रोडक्ट के ऊपर हम नहीं खेलेंगे। जहां सर्विस है, यानी कि पर कैपिटा इनकम बढ़ने से क्या होता है, आदमी सुविधाएं ज्यादा लेता है, खाना तो उतना ही खाएगा, क्वालिटी चेंज कर सकता है, उससे 6-7% की ग्रोथ आ सकती है। लेकिन अगर वो नए सर्विसेज लेने लगता है, स्पा है, पार्लर है, गाड़ी वॉश है, गाड़ी सर्विसिंग है, जहां जहां अपग्रेड होता है वहां पे बहुत पैसा बनता है। तो हम, वो हमारा थीम है, हम उसी पे फोकस करते हैं। Sandeep ji, I'm just entertaining one last more question. Will IT companies cover their underperformance? वेरी एक्सपेंसिव राइट नाउ, एक्सेप्ट फॉर वन और टू विच आर रीजनेबली प्राइस्ड, बात अलग है। एक लास्ट क्वेश्चन सर, मेरा फ्लाइट छूट जाएगा नहीं तो। पद्मा विल, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, फिर पद्मा विल टेक ओवर। शी कैन आंसर बेटर देन मी। Sandeep ji, we have broadly covered up all the questions. So probably matlab there's no need for us to extend it further. We can conclude this. So I ये will IT just वाला आप आंसर कर दीजिए. If Padma So wants I to will say just- something to conclude the technical discussions, let Padma have 2 minutes here. I will just conclude in 30 seconds, then Padma can do final discussion. So I will only request everyone that this is a great country with a golden period coming ahead. हमारा ग्रोथ बहुत अच्छा रहने वाला है। हमारे जितने भी पास्ट में रेड फ्लैग्स थे सब खत्म हो गए हैं, सब ग्रीन फ्लैग में कन्वर्ट हो गए हैं। आप लोग पेशेंस से रहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हमें पैसा दीजिए, आप हमें तो दीजिए तो हमें बहुत खुशी होगी, लेकिन आप इक्विटी में इन्वेस्टेड रहिए कोई भी तरह से, आपका बहुत पैसा बनेगा। और बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट मत होइए छोटी मोटी चीजों से। बहुत बार ऐसा होगा कि 15-20% नीचे आएगा पोर्टफोलियो, लेकिन उसके बाद वो 100% ऊपर जाएगा। ये सबसे अच्छा हाई ग्रोथ कंट्री है, भगवान की ब्लेस्ड कंट्री है। कभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, मैं आपको बताऊंगा हमारे यहाँ पे क्या क्या है जो दुनिया में कहीं नहीं है। तो बिल्कुल घबराइए मत और इन्वेस्ट करते रहिए, जितनी एबिलिटी, धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहिए, यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। दिस इज व्हाट आई बिलीव एंड आई डोंट हैव एनी अदर इंस्ट्रूमेंट देन इक्विटी फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। मेरे पास 0 FD है, मेरे पास PF भी नहीं है, सब कुछ मार्केट में है और मुझे कोई डर नहीं लगता। मैं आराम से एंजॉय करता हूँ जर्नी को, बहुत पैसा बनेगा, आई एम कॉन्फिडेंट। पद्मा प्लीज टेक ओवर, थैंक यू। Yeah, thank you everyone. So just to conclude, I think I will reiterate what Sandeep ji has been saying, that we're entering a golden era for India, wherein like if you see everywhere, like across various economies, either there is some kind of war or conflict going on, or basically like geopolitical tensions, or there is economic uncertainty, like huge economic slowdown, or there is something going on at the demographic end. Like you look at China, Japan, which have been some of the strong economies, some of the high growth economies in the past. Right now they're all facing their own problems. So India is in a very sweet spot, and unless we come up with some very random risk, like maybe a prime minister assassination or something unfortunate like that, which can cause temporary hiccups, but structurally we are in a very sweet spot for the next decade, and we are going to get a golden era, and this is the best time for all of us to to not only just create wealth for ourselves but for the generations to come. And we at Sovilo, we would love to be your partners in this journey of wealth generation. And yeah, with that, I would like to conclude the talk. Yeah. Thanks to everyone. We sincerely appreciate your participation and hope you find the session insightful. Wishing you a wonderful day ahead. Thank you and have a great day. Thank you. Thank you.